Greetings of the day. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are diving into a topic that touches everyone under the sun, literally. We are here to talk about the role and importance of sunscreen. Did you know that only about 30% of adults and even fewer children regularly use sunscreen when exposed to the sun? With skin problem rates on the rise, understanding the significance of sunscreen is more crucial than ever. Sunscreen isn't just about preventing sunburns, it's a powerful shield against harmful UV rays that can lead to premature aging, wrinkles, hyperpigmentation, most importantly, skin cancer. Yet, many of us still have questions about which sunscreen to choose, how often to apply it, and its long term benefits. Whether you are a skincare enthusiast or just starting to explore the world of sun protection, let's unlock the secrets of sunscreen together and embark on a journey towards sun safe skin. That's why we are thrilled to have Dr. Shaila Agrawal from South Delhi with us today. Dr. Shaila Agrawal is a well-known skin specialist practicing in Delhi since 1998. She is a pioneer in the industry, having expertise in dermatology, cosmetology, cosmetic surgery, anti-aging, peels, laser, and skin rejuvenation treatments. She is also the director and consultant dermatologist of Mehak, the Derma and Surgery Clinic at Sarvodaya Enclave, South Delhi, which offers a wide range of treatments to its valuable patients. Born and brought up in Delhi, she is a Maulana Azad Medical College graduate and an MD specializing in dermatology. She is known for her warm nature, excellent communication skills, and public speaking qualities. Innovative clinical treatments administered with good old fashioned attention is what has kept her ahead in the arena of surgical as well as non surgical aesthetics. In association with the Indian government, she devised a program to train and increase the rate of employment of girls in the dermatology industry. Being a source of knowledge, she has been an influencer in the field of academics. Dr. Shaila, we are truly honored to have you here today. Your presence adds immense value to our session, and we are so excited to delve into the world of sunscreen with your expertise guiding us. A very warm welcome to you. Thank you so much for having me over here. And the topic we have chosen, we can speak for hours on that, Samyukta. So let's dive into it. Right, absolutely true. And क्योंकि अभी summers है and again when summer approaches हमें अपनी स्किन में changes दिखने लगते हैं किस तरह से हमारी स्किन डल हो रही है टैन हो रही है सनबर्न्स हो रहे हैं तो ऐसे तो सनस्क्रीन थ्रू आउट लगाना चाहिए रूटीन रिलीजियसली हमें रूटीन स्किन केयर में सनस्क्रीन को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी ये मौसम मेरे ख्याल से और ज्यादा एप्ट है सनस्क्रीन पर बात करने के लिए सो टू स्टार्ट विद डॉक्टर what is sunscreen why sunscreens are so important सनस्क्रीन कई बार लोग इसे सन ब्लॉक भी बोलते हैं, जो एक्चुअली hmm. एक मिसनोमर है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, सनस्क्रीन इज द शॉर्टकट टू स्टेइंग यंग। दैट इज द Oh, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग all जो right. है, हम हिंदुस्तानी, वी आर मोर वरिड ऑफ गेटिंग टैन, थोड़े काले हो जाते हैं, थोड़े डार्क हो जाते हैं। सनबर्न से शायद हमें इतना डर नहीं लगता, बिकॉज द टाइप ऑफ स्किन वी हैव टाइप 4 फिट्जपैट्रिक, विच Hmm. समटाइम्स बर्न्स बट ऑलवेज टैन्स। वो वाली उसकी कुव्वत है, उसकी एबिलिटी है। तो हम जो है टैनिंग से ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन सनस्क्रीन का जो असली अहमियत है वो एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए है। आप हमेशा Hmm. देखेंगे, ब्राउन स्किन में हमारी दादी नानियों की स्किन भी बड़ी टाइट और बड़ी अच्छी होती थी। वील नेवर सी पकड़ स्किन अराउंड द माउथ। हमने कभी नहीं देखा होगा कि स्किन बिल्कुल लटक रही है। Hmm. गर्मी में सनस्क्रीन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, बिकॉज जाहिर बात है कि यूवी है, यूवी भी बढ़ जाती है। सर्दी में आसानी ये होती है कि आप सनस्क्रीन को एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। गर्मी में हमें Hmm. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है वो सनस्क्रीन जिससे हमें पसीना भी ना आए, जो रहे भी बहुत दूर तक, और स्विमिंग में भी हमारा साथ दे। Hmm. बिल्कुल और बाकी में ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि हमें सही सनस्क्रीन चूज करना बहुत जरूरी होता है खास तौर पे इस मौसम में क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती है बच्चों की छुट्टियां होती हैं बच्चे बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी हो जाते हैं और एक जो समर वेकेशन का कॉन्सेप्ट है वो चाहे हम स्कूल्स में हो ना हो
उस टाइम पे हम सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में, घूमने में, वेकेशन में इन्वॉल्व जरूर होते हैं, डायरेक्टली बिल्कुल, इनडायरेक्टली। सनस्क्रीन पर बात करना और ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर, सनस्क्रीन क्या होता है, क्यों जरूरी है, इस पे तो आपने बात कर ली और किस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये सिर्फ सन या हार्मफुल रेडिएशन से नहीं बचाता, बल्कि ये हमें एक एंटी एजिंग क्रीम के तौर पे भी मदद करता है। जी, उस पर भी हम डिटेल जी, में बात करेंगे। लेकिन सबकी स्किन अलग होती है। मेरी स्किन ऑयली है, बहुत सेंसिटिव है, और ऐसे में जब मैं सनस्क्रीन चूज करती हूँ तो इतनी दिक्कत होती है, जो आपने कहा कि पसीने में सनस्क्रीन बह गया क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल। पसीना आ रहा है। गर्मी में तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि आई डोंट लाइक द वाइट कास्ट इट फॉर्म्स, और हुँ, आई डोंट लाइक द हाउ इट मेक्स माय स्किन सो डल और पैची। तो सही सनस्क्रीन शायद उन्हें नहीं मिला। तो ऐसे में बिल्कुल। सही सनस्क्रीन चूज करना कितना जरूरी है, कैसे किया जाए? हमेशा जब हम सनस्क्रीन ढूँढने जा रहे हैं, वी आर मोर कंसंट्रेटेड ऑन एसपीएफ, हम उसको देख रहे हैं और आजकल पीए रेटिंग भी आ गई है, तो कहीं न कहीं दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मीडियम जो उस सनस्क्रीन जो साल्ट्स हैं, उनको डिलीवर कर रहा है। तो इसीलिए बाज़ार में आप देखेंगे कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, स्प्रे सनस्क्रीन है, लोशन सनस्क्रीन है, टिंटेड सनस्क्रीन आ गया है। तो अपनी स्किन के हिसाब से आपको वो मीडियम चूज़ करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं, एक हल्का-सा मेकअप भी चाहिए, तो टिंटेड सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो स्प्रे सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करती है। या आपको हाथ के ऊपर ये लगाना है, तो यहाँ पर आप लोशन बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं। हर कंपनी जब आप जाके उस कंपनी की सनस्क्रीन मैंने अगर आपको लिख दिया फलाना सनस्क्रीन ले लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगी बिकॉज वहां पर 10 सनस्क्रीन रखी होगी। तो वो राइट। सनस्क्रीन आपको आपकी स्किन टाइप क्या है उसके ऊपर लेनी है। बहुत सारी सनस्क्रीन्स हैं, यही काम हमारा है बेसिकली। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको एक सनस्क्रीन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है, और मेरा हमेशा कहना होता है अगर कुछ आपको सूट कर गया तो उसे प्लीज पकड़ लीजिए, याद करके उसे रख लीजिए। दूसरा तरीका होता है केमिस्ट। और एक बात मैं यहाँ पर पहले ही बोल दूं, सनस्क्रीन बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप एक कॉस्मेटिक कंपनीज की सनस्क्रीन देखेंगे, अगर आप एक ऐप से खरीदना चाहते हैं, देखिए ना उनके पास बनाने का जरिया है, ना उनके पास टेस्ट करने का जरिया है। बल्कि एक हिंदुस्तानी बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी सनस्क्रीन में एसपीएफ 30 लिखा हुआ था और 2 भी नहीं निकला। तो टू बी ऑन द सेफ साइड सबसे अच्छा ये है कि एक मेडिकल कंपनी की सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। वो कोई भी मेडिकल कंपनी हो सकती है, बिकॉज मेडिकल कंपनी जवाबदेह है, उसको एफडीए से अप्रूव करना पड़ता है, ड्रग एक्ट के अंदर है। तो एक केमिस्ट के यहाँ जाइए और बोलिए कि मेरी ऑयली स्किन है, सनस्क्रीन बता दीजिए। हमारे यहाँ के तो केमिस्ट ही आधे ट्रेंड होते हैं संयुक्ता, वही आपको बता देंगे कि आपको कौन सी लेनी है। और दूसरी चीज जो है कि अगर कुछ हैवी लग रहा है, व्हाइट कास्ट लग रहा है, क्वांटिटी में फेरबदल कीजिए, लगाने के तरीके में फेरबदल कीजिए। अगर आप उसको ऐसे करके लगाएंगे तो वो एक लेयर बना लेगी। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लेयर बाय लेयर अंदर जाना है। तो आइडियली आप ऐसे डॉट लगा के उसे धीरे धीरे अंदर कीजिए, फिर सेकंड लेयर लगाइए। जितनी क्वांटिटी, अभी हम क्वांटिटी की बात करेंगे कि भाई कितनी लगानी है, तो वो पूरी क्वांटिटी आपको एक साथ उसको थोप नहीं लेनी है, आपको उसे अंदर करना है। तो ये सब काम जब आप करेंगे तो फिर वो सनस्क्रीन ना वो व्हाइट कास्ट बनाएगी, ना वो स्वेटिंग करेगी। और दूसरी चीज एक बहुत, मैं बीच बीच में अपनी वो देती जा रही हूँ ताकि हम कहीं भूल बिल्कुल, ना जाए। बिल्कुल। अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो आप क्या करें, फेस वॉश करके फ्रिज से एक आइस क्यूब निकालें, उसको अच्छी तरह से चेहरे पर मलें और उसके बाद टॉवल से डैप ड्राई करें, 2 मिनट रुकें, अब आप सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाइए। तो यहाँ पर वो जो एक्सेस स्वेटिंग वाली कहानी है वो खत्म हो जाएगी, और ये काम जो है ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत काम आता है। तो सनस्क्रीन को उठा के रिजेक्ट करने से पहले ये देखिए कि क्या आप उसको लगा सही तरीके से रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, हाथ पे लगा के देखिए कितनी देर में अंदर जा रहा है, फिर उसको चेहरे पे रगड़ना शुरू कीजिए। प्रोडक्ट को बर्बाद मत कीजिए, और अगर फेस पर पसीना ला रहा है तो उसे गर्दन हाथ पे लगा के यूज कर लीजिए, यूज कर लीजिए।
ये भी बहुत अच्छी बात आपने की। और वाक़ई में केमिस्ट वाले भैया, क्योंकि वो हमारे केमिस्ट वाले भैया हैं और उनका इस्तेमाल हम इतना करते हैं कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पिंपल निकल गया है, जिसके लिए हमें नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम उनको अप्रोच करते हैं। लेकिन जब बारी आती है सनस्क्रीन की, तो हम जो लुभावनी ऑफर्स, एड्स हमें टीवी पे या दूसरे एग्जैक्टली। माध्यमों में दिखते हैं, हम उनके ट्रैप में फँस जाते हैं, तो वो नहीं करना है। वहाँ पर डॉक्टर की सलाह लीजिए, आप एक अच्छे डर्मैट से मिलिए, क्वालिफाइड डर्मैट से मिलिए और सनस्क्रीन वो आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप केमिस्ट शॉप पे जाके जो मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स हैं, वो लेंगे तो वो बेहतर होगा। डेफिनिटली बिल्कुल। आपका स्किन टाइप क्या है, आपका रूटीन क्या है, ये उसमें इम्पोर्टेंस बिल्कुल। प्ले करता है। सनस्क्रीन किस तरह से लगाना है, कब-कब लगाना है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन एक और सवाल जो आम तौर पर लोग पूछते हैं, और यही शायद वो वजह है कि अभी भी 60-70 people person population of our country is not using sunscreen as a regular routine thing. और उनका सवाल ये होता है कि हम तो जाते ही नहीं है बाहर, हमारा सन एक्सपोजर है ही नहीं। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, पूरे टाइम लैपटॉप के सामने बैठी रहती हूँ, या मैं हाउस मेकर हूँ, मैं किचन में मोस्टली अपना टाइम बिताती हूँ। तो मुझे सनस्क्रीन की जरूरत क्या है? तो क्या सनस्क्रीन रोज लगाना जरूरी है डॉक्टर? देखिए, यहाँ पर मेरा जो जवाब है वो एक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ सुने, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के, वो किताबी जवाब होता है कि नहीं-नहीं घर में भी सनस्क्रीन लगाइए और हम्म। येलो लाइट है और ब्लू लाइट है। मैं नहीं लगा सकती। अच्छा। हमारी ओके। स्किन जो है वो नेकेड नहीं होनी चाहिए। देखिए हम शहर में रहते हैं, एक लेवल ऑफ पॉल्यूशन है। एसी कमरे में बैठी हूँ, एयर कंडीशनर जो है आपकी स्किन को ड्राई करते जा रहा है या आप इसके आगे बैठे हैं, तो एक कवर ज़रूर होना चाहिए स्किन के ऊपर। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, अगर आपकी स्किन में दरारें नहीं हैं, ड्राई नहीं है, वो काफ़ी हद तक अपना जो प्रोटेक्शन है वो कर लेगी। हम जो है स्किन कलर अडैप्टेशन टू वेयर वी आर बोर्न। मैंने आपको पहले कहा था मेरी बातें थोड़ी-सी अलग होंगी बिकॉज़ मैं किताबी बातें नहीं करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। वो हमारे ज्यादा जो काम ही किताब आती है। सारी वेस्ट से लिखी जाती है, किताब गोरे लोग लिखते हैं और यूज़ हम ब्राउन लोग कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वो फैलेसी आ जाती है। जो लोग राइट। इक्वेटर के पास थे, जहाँ सन रेज़ बहुत ज़्यादा थी, वो डार्क हो गए, काले हो गए। हम लोग ट्रॉपिक्स की तरफ आ गए, तो हमारा ब्राउन स्किन है। हमारी स्किन में इतना मेलानिन है कि हमारा एसपीएफ 5 है, 20 मिनट तक अगर हम धूप में खड़े होते हैं, तो हम नॉर्मल धूप में मतलब आप 45 डिग्री धूप ना माने, पर जैसे गाड़ी तक जाना है, गाड़ी से निकलना है, तो हमारी स्किन काफ़ी हद तक उसको झेल लेती है। लेकिन यही स्किन आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई है, उखड़ी पड़ी है, लिप्स फटे हुए हैं, तो आपने तो बैरियर फंक्शन पहले ही ब्रीच कर दिया ना। तो अब चाहे वो फंक्शन वो सन हो या बैक्टीरिया और फंगाई हो, वो सब कुछ आपकी स्किन के अंदर जाएगा। तो अगर आप एक हेल्दी स्किन रखते हैं और नॉर्मल सा जैसे आप सुबह उठते हैं, घर में कोई भी जो है वो चाहे बच्चों को ही छोड़ने जा रहे हो आप उस तक, मुँह धो के एक हल्का-सा मॉइस्चराइज़र लगाएँ। मॉइस्चराइज़र लगाते ही आपकी स्किन की हाइड्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी प्रोटेक्शन पावर बढ़ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भई बाहर जो है थोड़ा-सा पॉलन का सीज़न है, स्प्रिंग एलर्जी है, कैलामीन लोशन या फाउंडेशन मैंने कितने मेल्स को फाउंडेशन पे कन्वर्ट कर दिया है, यू डोंट रियलाइज़ बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ हाँ। मेकअप, इट इज़ अ स्किन केयर प्रोडक्ट। भई वाह। फाउंडेशन जो है वो नॉर्मल कैलामीन लोशन ही है जिसको बेहतर हम्म। फ़ॉर्मूला बना दिया गया है। आपकी स्किन टोन के हिसाब से उसको कर दिया गया है। तो अगर आप 2 ड्रॉप लेके उसको पूरे पे लगाएँगे, तो वो एक लेयर बना रहा है आपकी स्किन के ऊपर। और सन जो राइट। है वो सबसे खतरनाक है 11 से 4 बजे तक। आज भी एक बच्ची आई कि मैं सुबह स्कूल सनस्क्रीन लगा के जाती हूँ। अगर आप सुबह 6 बजे सनस्क्रीन लगा के जा रहे हैं और दोपहर को 2 बजे जब आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है, तो सोचिए, क्या वो काम करेगी? वो कतई नहीं करेगी बिकॉज़ सनस्क्रीन तो 2 घंटे में खत्म हो जाती है। वो चली जाती है। सनस्क्रीन इज़ एन एक्टिव प्रोडक्ट इन द सेंस कि उसे स्किन की सतह के नीचे जाके बैठना है। ब्लड फ्लो जो आके जाता रहता है, वो सनस्क्रीन को खत्म कर देता है। तो आइडियली जो स्कूल गोइंग है या टीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम टीचर्स का होता है। दोपहर को 2 बजे वो बच्चों को चढ़ा रहे होते हैं और वो होता है। उसका तरीका होता है आप वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन कीजिए, उस वक़्त सनस्क्रीन की एक लेयर लगाइए। हम्म। वो सनस्क्रीन काम करेगी। दूसरी बात, सनस्क्रीन को काम करने में 20 मिनट लगते हैं। तो ऐसा नहीं है लगाया और दौड़ पड़े और सनस्क्रीन काम कर रही है। सो हम्म। सनस्क्रीन इज़ वन प्रोडक्ट जिसका काम लेने के लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी सनस्क्रीन कर रही है।
तो सनस्क्रीन इज नॉट लाइक योर मॉइस्चराइजर फेस वॉश के जो सबको लगाना ही है। सनस्क्रीन हुँ, जब लगेगी जब आप सच में धूप में जा रहे हैं, सनस्क्रीन जब लगेगी जब आप इतना वक्त दे के लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें दिमाग में चलनी चाहिए। किताबी बात कि नहीं जी घर में भी बैठ के लगा लीजिए, कैसे लगा लीजिए? गैस के आगे खड़े होंगे, बह जाएगी सारी सनस्क्रीन। तो हुँ। प्रैक्टिकल बात नहीं है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट और लगा लें। प्रैक्टिकली अगर आपको पॉसिबल हो भी पसीना नहीं ज्यादा पाता है। आता है, अगर आपको पसीना ज्यादा आता है संयुक्त, तो कॉम्पैक्ट लगा लीजिए। तो कॉम्पैक्ट में भी तो वही फॉर्मूला है ना, सेम राइट, फाउंडेशन और कैलामीन लोशन जैसा फॉर्मूला है। वो स्किन को डैप ड्राई करने के लिए है, वो इसीलिए है कि आपकी स्किन पे पसीना ना आए। तो हमारा जो मुद्दा है वो है सन प्रोटेक्शन, ना कि खाली सनस्क्रीन का थोप। राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है और एक और बात जो आपने कही और मुझे लगता है कि ये हमें बार-बार दोहरानी चाहिए कि आपकी स्किन का जो एक बैरियर है, वो डैमेज ना हो, वो एक्टिव हो, बिल्कुल। तो इसकी एक बेसिक मेंटेनेंस स्किन की ज़रूरी है और फिर उसको आप और बेहतर कर सकते हैं और जैसा कि आपने कहा कि सनस्क्रीन एक एंटी एजिंग क्रीम के तौर पे भी काम करती है, तो उस पर भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से एंटी एजिंग क्रीम हो जाती है एक सनस्क्रीन? देखिए, यूवी ए यूवी बी दो तरह की अल्ट्रावायलेट आ रही है। बी इज फॉर बर्निंग। तो अगर बी ज्यादा होगी तो आपकी स्किन थोड़ी देर में बर्न करने लगेगी, लाल हो जाएगी, आप खुद हट जाएंगे धूप में से। यूवी ए जिस वक्त ज्यादा होती है, ए इज फॉर एजिंग। तो वहां पर वो क्या कर रही है कि यूवी ए जो अंदर जाके स्किन के हमारे जो सेल्स के टीलोमियर्स होते हैं, हमारा सेल जो एक सेल है वो डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उसकी जब जिंदगी अगर कम हो गई तो आपके सेल स्टार्ट डाइंग अर्लियर। दिस इज एजिंग। सो जिस सेल को 10 साल तक जीना था, अगर वो यूवीए के अंडर रहेगा तो उसका टीलोमियर छोटा होता चला जाता है। टेक्निकल बात है, पर यह है कि उसकी जिंदगी का जो लाइफ स्पैन है वो छोटा हो जाता है। तो अगर आप यूवीए से अपने आप को बचाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी एजिंग उतनी बुरी नहीं होगी। इसीलिए मैंने पहले भी बोला, हमारी ब्राउन स्किन हैज सच ब्यूटीफुल, मतलब मैं तो हमेशा जो है, लोग मुझे बोल देते हैं कि आप बोल देती हैं क्योंकि आप गोरी हैं। तो मैंने कहा गोरे को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है, ब्राउन स्किन को साफ सुथरा रखना बहुत आसान होता है। तो एंटी एजिंग जो है वहां पर आपको, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी चीजें, 11 से 4 बजे तक की धूप सबसे खराब होती है। तो अगर आप सुबह बाहर जा रहे हैं और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप 11 से 4 बजे तक बाहर हैं तो सनस्क्रीन लगानी ही है। उससे फिर हमें छुटकारा नहीं है। शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, या तो सुबह कीजिए या शाम को कीजिए। वो जो वो होता है कि आजकल ग्लो नहीं आ रहा और थकी हुई लग रही हैं ब्राइड्स, बिकॉज आप अपनी स्किन को बचा ही नहीं रहे हैं। उसके बाद सनस्क्रीन सही चुनिए, मौसम के हिसाब से चेंज कीजिए। जो सनस्क्रीन आप 45 डिग्री में लगा रहे हैं, क्या आप 2 डिग्री में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो सर्दी में आपको क्रीम और लोशन की जरूरत है, गर्मी में आपको जेल और स्प्रे की जरूरत है। 20 मिनट पहले लगाइए, एडिक्वेट क्वांटिटी लगाइए। वो बस ऐसे ऐसे करके किया और हो गया, वो तो सनस्क्रीन तो लगी ही नहीं। मन की इच्छा पूरी हुई, सनस्क्रीन नहीं लगी। तो जब तक आप उस प्रोडक्ट से पूरा उसका निचोड़ नहीं निकालेंगे, उसको वेस्ट करके, मुझे तो लगता है कि लोग वेस्ट करते हैं सनस्क्रीन को, कि लगा ली बस ऐसे ऐसे किया और हो गया। और इसीलिए आपने कहा था कि सनस्क्रीन जो अपना काम करे वो सही से करे, इसके लिए जरूरी है कि हम उससे ठीक से काम करवाएं। तो हमें एक अच्छा टीम राइट, लीडर यहाँ पे साबित होना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी हमारी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी सनस्क्रीन इस्तेमाल में। आपने बताया डॉक्टर कि बिल्कुल। किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। हाँ, तो हाँ, हाँ, अगेन ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि वाकई में कुछ लोग जो है अपने पाम्स में लेके आधा तो हमारे हाथों पे ही रह जाता है और हाँ, किस तरह से और कितनी क्वांटिटी हम लें। हाँ। देखिए, सनस्क्रीन के साथ दिक्कत क्या है ना, कि सनस्क्रीन एक महंगा प्रोडक्ट होता है। हुँ, तो वो जो एक ट्यूब है आपकी, वो एक्चुअली 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि आपको लगाना है, मैं एक कॉमन मेजर बता रही हूँ। किताबों में जो है वो 2 फिंगर रूल और टी स्पून फुल रूल आता है। लेकिन जो हुँ, आम जो हम निकालने बैठते हैं, 1 कॉइन लेयर थिक, 1 रुपए के कॉइन जितना आपने निकाला, उतना ही वो उसकी थिकनेस है। ये आपका चेहरा और नेक ले, ठीक है? हुँ, इतना ही एक कॉइन एक हाथ लेगा, इतना ही एक कॉइन एक हाथ लेगा। तो सोच लीजिए 30 ml आपकी एक बार में चली गई है। तो अब आप उस ट्यूब को बचा के नहीं रख सकते। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि इसको ऐसे करके मत लगाइए। मॉइस्चराइजर के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि उसको रब कीजिए ताकि वो बॉडी हीट से एक्टिवेट हो। सनस्क्रीन को हमें एक्टिवेट स्किन के अंदर कराना है।
आप लीजिए, उसके इस तरह से डैप ड्राई कीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा अंदर कीजिए, फिर सेकंड लेयर लगाइए, फिर उसके बाद गर्दन पे ऊपर से नीचे तक लगाइए, सॉरी, नीचे से ऊपर आना है, गर्दन हमेशा नीचे से ऊपर आती है और फेस पे हमेशा इन टू आउट जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रीजी लग रहा है, कई बार वो लगाने में ग्रीज, 5 मिनट रुक जाइए, वो अंदर चली जाएगी। अगर नहीं जा रही है तब उसको हल्का सा आप टिश्यू से डैप ड्राई कर सकते हैं। या तो होता है 2 फिंगर रूल, जैसे इतना इतना आपने निकाल लिया और ये आपने पूरे चेहरे और नेक पे चेहरा और नेक एक यूनिट माना जाता है। और सनस्क्रीन जब हम लगा रहे हैं तो चेहरा और नेक के साथ साथ जो एक्सपोज्ड एरियाज है हाथ का, वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज सबसे ज्यादा जो आपने देखा है, एजिंग सबसे ज्यादा हाथ पे नजर आती है। तो हाथ के लिए सनस्क्रीन की अहमियत शायद ज्यादा है प्रैक्टिकली एज कंपेयर टू फेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहां तक आप टेबल स्पून रूल का करें, तो टेबल स्पून का मतलब होता है तकरीबन 5 ml, तो टी स्पून का होता है 5 ml, तो 5 ml के करीब आप निकाल लें। पर जो प्रैक्टिकल रूल जो मैं खुद अपने ऊपर करूंगी या जो मैं किसी को बताऊंगी, कॉइन शेप जितना निकालिए और उसको अच्छी तरह से मल के लगाइए। रीअप्लाई करना कितना ज़रूरी है? कब-कब करना चाहिए? ख़ास तौर पे जैसा कि आपने कहा कि 11 से 4 बजे की जो धूप होती है, जो रेडिएशंस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो किस तरह से हम सनस्क्रीन को कब-कब लगाएँ? जी। पहली चीज कि 20 मिनट लगते हैं सनस्क्रीन को अपनी जगह जाके सेट होने में, सो दैट इट डज इट्स जॉब। तो 20 मिनट पहले लगाएं और उसके बाद 2 घंटे में, 2 का हद बहद 3 हो, इसको देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सब्सटैंटिविटी फैक्टर, जिसका मतलब है कि कितनी सनस्क्रीन इफेक्टिव रहती है। जब आप बाहर जाते हैं, आपने पसीना भी बहा लिया, धूल मिट्टी भी है, आप बार बार हाथ से पोंछ भी रहे हैं, तो कितनी सनस्क्रीन इफेक्टिव रह जाती है। तो अगर आप बहुत ही स्वेटी कंडीशंस में हैं तो 2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने जैसे सनस्क्रीन लगाई, उसके ऊपर आपने मेकअप भी लगा लिया, थोड़ा सा टाइट मेकअप है, आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, पसीना नहीं बह रहा है, तो 3 से 4 घंटे भी हो सकता है। यहाँ पर जो जरूरत होती है वो रीएप्लीकेशन की होती है। तो रीएप्लीकेशन के लिए मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हमारा मेकअप धुल जाएगा फिर। तो हाँ, आपको मेकअप तो दोबारा करना पड़ेगा अगर आप सनस्क्रीन कर रहे हैं, पर अगर आपने सनस्क्रीन के साथ मेकअप लगाया हुआ है तो 4 घंटे तक उसका काम चल जाता है। अपने कार में, अपने बैग में वेट वाइप्स रखिए, और वो भी बेबी वेट वाइप्स। जो नॉर्मल वेट वाइप्स मिलते हैं जिसमें साबुन जैसा होता है, सोपी होता है, वो नहीं चाहिए। नॉर्मल बेबी वेट वाइप से क्लीन कीजिए और फिर सनस्क्रीन को दोबारा वही प्रोसीजर दोबारा। अब आप बोलेंगे जी 20 मिनट तो पहले आपने बोला, अब तो हम बाहर ही हैं, तो 20 मिनट कहाँ से अंदर जाएंगे। पर ये तो आप सेकेंड लेयर लगा रहे हैं, द स्किन इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, तो आप उसी प्रोटेक्शन को ऐड कर रहे हैं। सबसे जरूरी क्या है कि प्रोटेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या हुआ, आप घर से निकले, आपने अपनी स्किन को इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है, एक अच्छी सी एसपीएफ, एसपीएफ की सब लोग बात पूछ रहे हैं कि हाउ मच एसपीएफ, हाउ मच एसपीएफ, आपने एक अच्छा एसपीएफ लगा रखा है, तो आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दे रखी है, जिसका मतलब है कि स्किन बेचारी बहुत ही अच्छे से धूप में जा रही है। सनस्क्रीन खत्म हो गई, अब स्किन को ये नहीं पता कि करे क्या। पहले तो आपने दुपट्टा भी दे रखा था, छतरी भी दे रखी थी, अब आपने उसको बिल्कुल नेकेड छोड़ दिया। जब ये होता है, आप किसी स्प्रिंग को अगर ऐसे दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वो 10 गुना पीछे जाएगा। तो स्किन रिएक्ट्स वेरी बैडली इफ यू डोंट रीअप्लाई सनस्क्रीन। हमेशा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं काला नजर आता हूँ, मैं काली नजर आती हूँ जब मैं सनस्क्रीन का रेगुलर यूज करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप रीअप्लाई नहीं करते। आप रीअप्लाई नहीं करते, 2 घंटे में वो सनस्क्रीन चली गई। अब उसके बाद आपकी नेचुरल प्रोटेक्शन, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई होती ना, तो धीरे धीरे वो मेलानिन ऑक्सीडाइज होके वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेता। अब आपने वो स्टेज तो खत्म कर दी और सनस्क्रीन लगाई नहीं, तो सडनली वो एकदम टैन हो जाता है। तो reapplication every 2 hours if you are in a sweaty environment, if you are in air conditioned environment and you have another layer on sunscreen, 3 से 4 घंटे आराम से निकल जाते बिल्कुल। हमने डॉक्टर बात की कि किस तरह से हम अपना सनस्क्रीन चूज़ करें, बहुत सारे फ़ॉर्मुलेशंस हैं, तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से हमारा जो रूटीन के है, उसके हिसाब से हम सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके द्वारा कि जो आपने भी कहा कि सबसे आम सवाल होता है कि एसपीएफ क्या हो? तो पूजा ने भी पूछा है व्हाट एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज़ रिकमेंडेड फॉर डेली यूज़। इसके साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि एसपीएफ के साथ-साथ बेसिक्स हम क्या-क्या बेसिक चीजें हैं जो हम अपने सनस्क्रीन में देखें?
सनस्क्रीन जब आप चूज़ करेंगे तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चूज़ करेंगे। जो रूटीन आपका चल रहा है, ऑफ़िस जा रहे हैं, ऑफ़िस में लंच के टाइम पे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर 15 से 30, हम ब्राउन स्किन वालों को 30 एसपीएफ से ज़्यादा सनस्क्रीन की ज़रूरत कतई नहीं है। अब हम पीए फैक्टर भी देखने लगे हैं, बिकॉज़ पीए इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर यूवीए। जो एसपीएफ है वो हमेशा यूवीबी प्रोटेक्शन की बात करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एसपीएफ 30 प्लस पीए 3 प्लस, 3 प्लस 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 के साइन हो, वो काफी अच्छा काम कर जाता है। लेकिन यहीं पर ही आपका दिन ऐसा है कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी की बात हुई, आपको पता है छुट्टी इसलिए दी जाती है कि अंदर रहिए, धूप से बचिए। पर हाँ। हम सब जो है छुट्टी में घूमने निकल हुँ, जाते हैं। तो जब हुँ, आप घूमने जा रहे हैं तब आपका सन एक्सपोज़र ज़्यादा होगा। और दूसरा जो यूवीए, यूवीबी की पेनिट्रेशन है वो सन, सैंड एंड आइस इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप बीच पे हैं तो जितनी सन जो आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करता है उससे 3 गुना इफ़ेक्ट करता है। आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर 5 गुना इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको एसपीएफ 50 से 60 चाहिए। लेकिन यहाँ हुँ। भी 100 एसपीएफ कतई नहीं चाहिए। हमारी ब्राउन स्किन में 50 से ज़्यादा एसपीएफ कोई काम नहीं करता है। तो रूटीन ज़िंदगी में आपका एसपीएफ रहेगा 20 टू 30 विद 3 प्लस पीए। एंड अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका एसपीएफ रहेगा 50 विद 3 प्लस पीए। क्योंकि हमने छुट्टी का फिर से ज़िक्र किया और शुरू में भी हमने बात की थी वैकेशंस की, समर वैकेशंस की, तो बच्चे भी क्या सनस्क्रीन लगाएँ क्योंकि उनका तो एक्सपोज़र अंडर द सन काफ़ी रहता है, काफ़ी वो एक्टिव होते हैं, तो कितना ज़रूरी है उनके लिए सनस्क्रीन लगाना और वो तो स्वेट भी बहुत करते हैं। तो किस तरह से उनका एक रूटीन हम मेंटेन करें सनस्क्रीन का? सबसे ज़रूरी ये है, जैसे मैंने कहा कि सनस्क्रीन नहीं, सन प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। हमेशा राइट। जो है कि आप सन से अपना एक्सपोज़र कैसे बचा सकते हैं, वो ज़्यादा अहम है, सनस्क्रीन उसका एक हिस्सा हो सकता है। पहली हुँ, बात, 6 महीने से छोटे बच्चे, उनका स्किन सरफेस इतना ज़्यादा होता है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लगाएँगे, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा बिल्कुल उनके अंदर। तो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सनस्क्रीन कतई नहीं। तो हुँ, पहली चीज़, आप उन्हें ज़्यादा धूप में नहीं निकालेंगे। दूसरा, अगर निकालना ही है तो हैट, कैप, पूरे कपड़े, उसके बाद अम्ब्रेला, जैसे अब प्रैम में भी निकालते हैं तो पूरी एक छतरी होनी चाहिए उनकी। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को सन एक्सपोज़र के लिए सनस्क्रीन का ऑप्शन है ही नहीं। 2 साल, हुँ, 6 महीने से लेके 2 साल, 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए आप किड्स सनस्क्रीन जो दी जाती है वो ले सकते हैं। उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ वो बहुत ज़्यादा ग्रीज़ी नहीं होती है। मतलब अडल्ट सनस्क्रीन जो होती है उसको थिक स्किन से अंदर जाना है। बच्चों हुँ, की स्किन बहुत पतली होती है और प्रोडक्ट जो है फटाफट अंदर जाता है। तो उसकी जो बिल्कुल। मिसेबिलिटी होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो जो किड्स सनस्क्रीन के नाम से आ रहा है वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन एसपीएफ 30 तक ही रहेगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों का जितना स्किन का सरफेस है, उस पे आप कुछ भी लगाएँगे वो अंदर शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो कम से कम हुँ, कीजिए। पहली बात, 11 से 4 के बीच में धूप में नहीं जाएँगे, स्विमिंग भी शाम को होगी और हाइकिंग भी सुबह होगी। उसके बाद कपड़ा पहनेंगे, देयर इज़ अ यूपी फैक्टर, अल्ट्रावायलेट यूवीपी, अल्ट्रावायलेट फैक्टर जो कपड़ों के लिए भी आता है। तो हुँ, उसके अंदर जो है वो कपड़ा जिसके थ्रू सन अंदर नहीं जाता, टाइट निट कपड़ा। मतलब हुँ, अगर आप कॉटन वाला वो पहनेंगे उसके अंदर जाएगा, लेकिन अगर आप एक विस्कोस या एक जैकेट जैसा पहनेंगे उसके अंदर नहीं जाएगा। हैट, बिकॉज़ एक ऑस्ट्रेलिया में सन जो है वो काफ़ी खौफनाक चीज़ है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज़ ऑफ आवर राइट, ब्राउन स्किन। बिकॉज़ हमारी राइट। ब्राउन स्किन में उतनी चेंजेस हो नहीं पाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का एक जो डिक्टम है, उनके यहाँ ये बहुत बड़ी कैंपेन चलती है, स्लिप स्लॉप स्लैप। मतलब स्लिप ऑन अ हैट, स्लैप अ सनस्क्रीन एंड स्लॉप इनटू अ शेड। मतलब आप शेड में रहिए, कैप लगाइए और सनस्क्रीन लगाइए। तो बच्चों के लिए सनस्क्रीन के ऊपर प्लीज रिलाय मत कीजिए। बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सनस्क्रीन भी खुद उनके ब्लड स्ट्रीम में नहीं तो एब्जॉर्ब हो जाती। डरा नहीं रही हूँ, सही बात हुँ, बता रही हूँ। वो बच्चों को लगाया सनस्क्रीन और दोपहर को बीच में निकल गए, जा सकते। आप 11 बजे से पहले जाइए और फिर उसके बाद 4 बजे के बाद जाइए। बिल्कुल और और एक बात, फिज़िकल जो जो बैरियर्स सन, हैं उनका हाँ, हाँ, सन जो एक्सपोज़र है संयुक्ता, वो क्यूमुलेटिव होता है, मतलब हमारी ज़िंदगी का क्यूमुलेटिव होता है। तो जो ख़ामियाँ या जो भी गुनाह आपने बचपन में किए सन के साथ, वो बाद में आपके सामने आएँगे।
तो बिल्कुल। इसलिए माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चों को सन से प्रोटेक्ट कर, बच्चों को नहीं पता। मैं हमेशा बोल देती हूँ घर में, मैंने कहा गर्मी की छुट्टी इसलिए मिली थी कि आप अंदर रहें। नहीं तो स्कूल ही ना चले जाते। हाँ, राइट। तो सुबह एब्सोल्युटली। निकलिए, शाम को निकलिए, पर धूप में मत जाइए। अच्छा, हमारी एक व्यूअर है श्वेता, वो पूछ रही हैं कि क्या सनस्क्रीन कैन सनस्क्रीन प्रिवेंट सन एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज? Sunscreen cannot prevent sun allergies and sensitivities, but if you are already sun sensitive, then you have no option but to apply the sunscreen. सन सेंसिटिविटी क्यों हुई? क्योंकि सन सेंसिटिविटी इसलिए हुई कि आप सन में ज्यादा रहे, आपकी स्किन उससे बर्न हो गई या इरिटेट हो गई। शायद वो इसलिए हुआ कि जैसे मैंने बोला, ज्यादातर सन सेंसिटिविटी जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं जब आप आधी अधूरी सनस्क्रीन लगाते हैं, आपने लगाई हम्म। पर रीअप्लाई नहीं की, उसके बाद स्किन के पास कुछ प्रोटेक्शन नहीं थी, तो वो सडनली द स्किन डजंट नो व्हाट हैपेंस, एंड देयर आर सम पीपल। मेरा एक डायलॉग है, मैंने कहा हिंदुस्तान में रह के धूप से बैर करके कहाँ जाओगे, तो वो वाली कहानी है। तो अगर आपको धूप से एलर्जी हो गई है, डॉक्टर के पास जाइए। देयर इज ओरल सनस्क्रीन जो हम ओरली देते हैं ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे। बीटा कैरोटीन होता है गाजर वाला पिगमेंट, तो वो आपके जो ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, वो ठीक करता है। एंटी एलर्जिक्स दिए जाते हैं। फिर आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा दोबारा धूप में जाने से पहले। तो हो सकता है कि सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से हुई हो, पर अब आपको लगाना पड़ेगा। और जिनकी डॉक्टर एक्ने प्रोन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, एक्ने है अगर स्किन में, तो वो लोग कई बार अवॉइड करते हैं सनस्क्रीन लगाना। उनको लगता है कि हम ऑलरेडी एक्ने है, उसमें क्यों लेयर अप करें। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ पर जेल बेस्ड सनस्क्रीन आती है सर। तो वो बनी ही जेल, जेल इज अ प्रोडक्ट विच इज वाटर बेस्ड, जेल बनता ही वाटर से है। जैसे लोशन और क्रीम्स जो हैं वो पेट्रोलेटम से बनते हैं, ग्लिसरीन से बनते हैं, तो जेल बनता ही उससे है। तो एलो बेस्ड सनस्क्रीन, गर्मी तो एलो का सीजन है, तो आप एलो बेस्ड सनस्क्रीन लगाइए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप आइस क्यूब कंप्रेस करके और फिर सनस्क्रीन लगाएंगे ना, तो वो ऑयल प्रोडक्शन भी कंट्रोल होता चला जाएगा। और बल्कि एक्ने के साथ कई बार एक्ने गेट्स एग्रीवेटेड बाय सन एक्सपोजर, बिकॉज वो जो स्वेट और सीबम का मिक्सचर है, जब आपको पसीना आता है और वो जो एक्ने का होता है, दैट एग्रीवेट्स एक्ने। तो आपके पास वो चॉइस नहीं रहती। तो जाने से पहले भी आप आइस कंप्रेस कीजिए, वापस आके ठंडे पानी से अपना मुंह धोइए। तो सनस्क्रीन लगाना अगर आप 11 से 4 धूप वाले काम में हैं तो जरूरी है। अंशुल हमारे साथ है, उनका सवाल है क्या सनस्क्रीन में ब्राउन स्पॉट्स और अधिक रंग के दाग को रोका जा सकता है सनस्क्रीन से? सन, अगर आपको वो हो गए हैं तो जब भी आप सन में जाएंगे तो उनमें मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सो दे बिकम मोर विजिबल। तो उस हम्म। विजिबिलिटी को कम करने के लिए अगर आप जो है सनस्क्रीन लगाएंगे तो जाहिर बात है वो मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो ठीक होते चले जाएंगे। जैसे मेलाज्मा जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो मेल्स आजकल, तो हम मेल्स में भी बहुत देख रहे हैं और लेडीज में भी बहुत ज्यादा होता है। हम जो भी उसका हम्म। ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम ज्यादातर ट्रीटमेंट बोलते हैं रात को लगाइए। रात को लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन की सर्कुलेशन रात को होती है, तो रिपेयर रात को अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने रात को 2 कदम पीछे गए आप उस पिगमेंटेशन से और दिन में आप धूप में चले गए, तो वो तो आप वहीं आके खड़े हो गए। तो अगर आपको ब्राउन स्पॉट्स हैं या आपकी स्किन डैमेज आपको लग रही है, जैसे डल हो जाती है, तो यहाँ पर आप कोई भी अगर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, रात को डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने विटामिन सी, नायासिनामाइड, आजकल तो लोग जो है मतलब सुबह से आके रात तक का जो अपना मेन्यू सुनाते हैं, मुझे लगता है ये कैसे करते हैं। उसके बीच में अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई, तो वो जो भी ब्राइटनिंग और पॉलिशिंग कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगी। तो अगर आपकी स्किन डल है, ब्राउन स्पॉट है, तो सनस्क्रीन आपकी जरूरत बन जाती है, सिर्फ फैशन नहीं। बिल्कुल, आजकल इन्फ्लुएंसर्स से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं हम लोग, और कई बार वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो क्वालिफाइड डर्मैट्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास हर मर्ज की दवाएं, और स्किन को लेकर तो इतनी होम रेमेडीज या क्या केमिकल, क्या कंपोजिशन यूज करना है, दे आर सो प्रो इनका विद इट, और हम लोग दवा सब नहीं, फॉलो भी करते सैंपल ज्यादा है, तो हर चीज लगा के दिखानी है, और वो जो यूजर है वो बेचारा चूज करने की बजाय सब कुछ लगाने की कोशिश करता है।
Actually, I know people who end up buying like 50 products for their daily skincare maintenance. हम दो तीन चीजें नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतने अगर प्रोडक्ट्स कोई ले ले तो वो कैसे, जैसे आपने कहा ना कि मैं मेनू सुन के ही घबरा जाती हूँ, तो वो वैसा ही होता है। तो इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम चीजों को मिनिमम रखें लेकिन बेस्ट रखें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो एक बार मैं चाहूंगी डॉक्टर, चूंकि हमने ये बात छेड़ दी है, बेसिक्स क्या है स्किन केयर के? सनस्क्रीन पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं, सनस्क्रीन को किस हाँ ऑर्डर में लगाएं, क्या स्किन केयर रूटीन हम बेसिक अपनाएं? जी। समर का जो स्किन केयर है वो है इट रेस्ट ऑन क्लिनजिंग। क्लीन हमें करना पड़ेगा बिकॉज वी लिव इन ए पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है कि बिना क्लीनिंग के काम चल जाएगा। क्लिनजिंग के लिए आपको फेस वॉश, जैसे सनस्क्रीन मैंने बोला जेल लोशन और वो होता है, उसी तरह फेस वॉश, जो एक्ने वाले हैं वो फोमी फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो जेल बेस इस्तेमाल करेंगे, जो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्लिनजर्स इस्तेमाल करेंगे, जो सेंसिटिव स्किन है वो मिसेलर वाटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने किया। उसके बाद आप एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए। मॉइस्चराइजर भी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो जाएगा। एक्ने प्रोन स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएंगे। कंपनी का सब कुछ अवेलेबल है, आपके लिए क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपकी स्किन अच्छे से हेल्दी हो गई, अब बाहर जाने से पहले आप सनस्क्रीन लगाएंगे। और सनस्क्रीन का भी आप लोशन लगाएंगे तो उसको डैप करके लगाइए, क्रीम लगाएंगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप दो ले लें, जो हाथ है उसके ऊपर क्रीम लगाएं। फेस पे स्वेटिंग ज्यादा होती है, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो फेस पे होते हैं, तो फेस के लिए आप लोशन ले लें, लेकिन हैंड्स के लिए तो वो आपका मॉइस्चराइजर का काम भी करेगा। अगर आप स्प्रे यूज कर रहे हैं तो स्प्रे तब तक कीजिए जब तक एक शीन ना आ जाए, वहां पर लगे कि हाँ अब एक इवन सा हो गया है। अब जब आपने सनस्क्रीन लगा लिया, जब सब कुछ हो गया, तब आप चाहें तो इसके ऊपर अपना मेकअप लेयर लगा सकते हैं, विच कैन बी अ फाउंडेशन, विच कैन बी अ कॉम्पैक्ट, विच कैन बी अगेन, बट इट हैज टू बी अ ऑयल फ्री मेकअप। गर्मी में अगर आप ऑयली मेकअप करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी स्किन केयर स्प्रिंग और ऑटम में चेंज करनी ही पड़ेगी, देर इज नो ऑप्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप फेस वॉश लगा रहे हैं वो साल भर लगा रहे हैं। और उससे भी जरूरी चीज है, सबसे जरूरी, हम यहाँ लगाने लगोने की बात में, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, 8 से 10 ग्लास पानी, तो स्किन में कुछ भी कर लीजिए दरार आएगी ही आएगी, ग्लो होगा ही नहीं। आप सनस्क्रीन को बदनाम करेंगे, आप मॉइस्चराइजर को बदनाम करेंगे। यहाँ पर आपका नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स चाहिए। कोलाज एंड फिजेस डजंट काउंट। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पीते हैं तो स्किन डिहाइड्रेट होती है रादर देन रीहाइड्रेट। तो आप जो है जलजीरा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आप ये जो कोकोनट वाटर होता है उसमें सबसे अच्छा पोटेशियम होता है, तो वो पीजिए। तो जब तक आप अंदर से रिहाइड्रेटेड नहीं होंगे और आपकी स्किन हेल्दी नहीं होगी, तो सनस्क्रीन को बेचारी को बदनाम ही मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले अंदर से हमें ठीक होना है। स्किन ऐसे भी इट्स रिफ्लेक्टर ऑफ आवर हेल्थ। क्या कुछ अंदर हमारे हेल्थ। बॉडी के चल रहा है वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। तो हम अंदर से उसे कितना हेल्दी रखते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। एक और बिल्कुल। सवाल जो हमारे व्यूअर ने पूछा है, व्हाई नॉट जस्ट कवर अप विथ क्लोथिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन? प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस। नहीं, इट इफ यू कैन कवर अप विथ क्लोथिंग, एज आई सेड के सन प्रोटेक्शन की कहानी हो रही है, सनस्क्रीन की कहानी नहीं हो रही है। तो आप अगर एक हैट पहन रहे हैं, आपने कपड़े अच्छी तरह से कवर किए हुए हैं, आइडियली जो है वो यहाँ तक तो कवर होना ही चाहिए, वो हाफ स्लीव्स और उसकी जरूरत नहीं है। और आप बहुत ज्यादा देर तक धूप में नहीं है। देखिए, धूप में आप निकल के घर से गाड़ी में बैठ रहे हैं, इतनी देर में सन आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा धूप में खड़े हुए हैं, लंच टाइम पे कई बार लोग बाहर घूम रहे होते हैं, तब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है ना। तो आपकी जिंदगी का किस वक्त क्या काम हो रहा है, ये अकल की बात है। अगर आप अपने दिमाग में सन प्रोटेक्शन की एक रूटीन बना लेंगे, आप अपने आप आपको पता लग जाएगा कि अब मुझे सनस्क्रीन पकड़ लेनी चाहिए। अभी हम जैसे सफारी पे गए, नॉर्मली मेरे जैसा आदमी तो धूप में जाता नहीं है, तो मेरी एक्लिमेटाइजेशन भी नहीं है। मतलब मैं अगर 5 मिनट भी जाऊंगी तो मैं जल जाऊंगी, बिकॉज मेरी स्किन को आदत नहीं है सनस्क्रीन। वी वेंट फॉर अ सफारी, वो 5 मिनट में मेरे हाथ जल गए, तो मैंने आके उसकी रिपेयर की पूरी। अब सनबर्न की रिपेयर क्या है ये भी सुन लीजिए। वापस आते ही अगर आपको लग रहा है जलन हो रही है, तो आइस, कोल्ड वाटर,
उसमें ठंडे पानी को लगाइए और कोई भी मॉइस्चराइजर हल्के से उसका मसाज कर लीजिए। लेकिन आफ्टर 2 टू 3 आवर्स अगर आपको लग रहा है कि अभी भी जल रहा है, तो एक हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम जो स्टेरॉइड क्रीम होती है, डरिए नहीं, वो बहुत अच्छा काम करती है अगर इमीडिएटली यूज किया जाए। उसको सिर्फ एक बार लगाएं, क्योंकि क्या होगा अगर आपका स्किन सनबर्न हो गया है और आप दोबारा सन में जाएंगे तो वो यहाँ से यहाँ होता चला जाएगा, सनबर्न की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि स्किन बर्न हो गई है, वो पता लग जाएगा, दुखने लगेगी, लाल हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाएगी, तो पहले ठंडे पानी की ऐसी इस तरह से पट्टी करें, एक कॉम्बीफ्लैम जैसी चीज खा लें। सनबर्न इज फर्स्ट डिग्री बर्न, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको ठीक करें। और अगर फिर भी शाम तक ठीक नहीं हुआ है तो एक हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम सिर्फ एक बार लगाने में कोई नुकसान नहीं। And doctor, as we are coming to the concluding part, तो conclude करने से पहले इस सेशन को कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, बिल्कुल। देखिए, समर हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है इंडिया में और ख़ासकर नॉर्दर्न इंडिया में। तो जैसे ही आपको लगता है कि हवा में हवा कह रही हूँ, धूप में चमक आने लगी है, तो अपनी सन प्रोटेक्शन शुरू कर दीजिए। अच्छे ग्लासेस होने चाहिए। ये तो हम भूल जाते हैं, यूवीए, यूवीबी आँख के अंदर भी जाती है और रेटिना पे इफ़ेक्ट करती है। तो एक अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस, आपके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर होने चाहिए। आप पार्टी में जाइए लेकिन ऊपर से एक शॉल वग़ैरह पहन लीजिए। अपने प्रोडक्ट्स को वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में ले आइए। अपने लिए एक सनस्क्रीन ढूंढ के रखिए। रूटीन में मैं नहीं कहती कि रोज आप सनस्क्रीन लगा के जाएं, लेकिन अगर आप टीचर हैं, अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको दोपहर को बाहर निकलना पड़ता है, उस वक्त आप एक फ्रेश लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाएंगे ही लगाएंगे। बिकॉज कि लॉन्ग टर्म के लिए, किसी ने पूछा है कैन इट प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग, डेफिनेटली सनस्क्रीन ही है जो एजिंग को प्रिवेंट कर सकती है। बाकी और कुछ बिल्कुल। नहीं प्रिवेंट कर सकता। वो तो शुक्र है कि हम ब्राउन स्किन पे एजिंग नजर नहीं आती है। तो और जैसे मैंने कहा, हाथ के ऊपर एजिंग सबसे पहले नजर आती है। तो चेहरे पे पसीने की वजह से लगाएं ना लगाएं, कम से कम हाथों पे सनस्क्रीन जरूर लगा लीजिए। तो ये सब चीजें हैं, अपनी जिंदगी में, अपने रूटीन में, अपने हिसाब से सनस्क्रीन को शुमार कीजिए। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर, और काफी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपने हमारे सवालों के जवाब दिए ना। आई एम श्योर कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो अब तक उस तरह से सन प्रोटेक्शन को लेकर नहीं सोचते थे, अब सोचेंगे, और 11 से 4 भले ही समर वेकेशन है, समर्स है, पर वो कोशिश करेंगे कि सन एक्सपोजर ना हो। ना सो हो। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। And viewers, thank you for your active participation. Stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.